Hello students, welcome back to the social science class. In the last video, we have started chapter number 12, natural disasters. In that video, we have learned about the meaning of natural disasters and we have discussed floods and droughts in detail. Today, we will learn about few more natural disasters. We will start with the earthquake. Earthquake, I think most of you know the meaning of earthquake. Earthquake means shaking of the surface of the earth. It means shaking of the surface of the earth, or in the other words, violent movement of the surface of the earth. अर्थ की जो सरफेस है एकदम से वायलेंटली मूव करती है, इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक. Do you know what is the reason for the earthquake? Why it occurs? Earthquake occurs due to sudden movement of rocks under the surface of the earth. अर्थ की सरफेस के नीचे रॉक्स जब अचानक से मूव करती हैं तो उससे क्या होता है, जो अपर सरफेस है अर्थ की, बाहर की जो सतह है, वहाँ पे क्या होता है, हिलजुल महसूस होती है, कंप कपाती है, जब उसको हम earthquake बोलते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, एज इट हैपन्स ऑल ऑफ द सडन. बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड. इट कैन बी मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. अर्थ की जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है और जो इसकी इंटेंसिटी है उसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जा सकता है. आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, लाइक थोड़े दिन पहले ही, कि हम दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल के ऊपर 6 मापी गई. तो रिक्टर स्केल मीन्स इट्स अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड और द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. Clear? The study of earthquakes is called a seismology. अर्थ की जो earthquakes की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? Seismology. Okay? Now you have come to know about what is earthquake and how it is occur. Now I will discuss about few more points related to the earthquake. Do you know earthquake कहाँ से start होते हैं? It starts from under the earth. I am trying to explain it here with the help of this small diagram. This is the surface of the earth. Suppose this is the place where these rocks move or sometimes they collide with each other. This place is called as focus. इस place को हम क्या बोलते हैं? Focus. And directly above this focus, इस focus के ऊपर बिल्कुल जो ये area है, is called the epicenter. It is called the epicenter. And this is the most affected area of an earthquake. और ये earthquake का क्या है? सबसे ज़्यादा affected area होता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा destruction इसी place पे होती है. It is called as epicenter. Clear? Now you know earthquake is very destructive. It causes a lot of destructions. So one must be very cautious and must take some precautions to minimize the destruction, to minimize the damage caused by earthquake. Here are some ways how we can save ourselves. First of all, come outside the building. अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, whether we are inside the house or in the school, try to come outside of the building. If it's not possible, try to hide yourself under the table or under some heavy thing like bed. And we can also hold a thing tightly so that we can save ourselves from knocking down. हम अपने आप को गिरने से बचा सकें तो हमें कुछ हैवी चीज़ टाइटली पकड़ लेनी चाहिए. Another precautions that one must
take, these are turn off the water, electricity and gas supply. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सप्लाई को हमें बंद कर देना चाहिए. यूज़ द स्टेयर्स इन प्लेस ऑफ एलिवेटर एंड लिफ्ट लिफ्ट या फिर एलिवेटर की जगह पे हमें स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए. डोंट एंटर द डैमेज बिल्डिंग के अंदर भी एंटर नहीं करना चाहिए. यूज़ अ टॉर्च इन प्लेस ऑफ मैच स्टिक और अ लाइटर. पुट आउट एनी फायर and don't use the mobile phone unless absolutely necessary. Pay attention only to the information from the authorities. हमें रूमर्स को ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए. Clear? These were the few precautions that we can take during the time of earthquakes. Clear? Next is cyclone. This is another natural disaster. It is cyclone. I think आपको इसका मीनिंग पता ही है. Cyclone means strong winds that form over the sea or the ocean and they move in the shape of circle around a center. जो strong winds चलती हैं एक सर्कल में, सर्कुलर फॉर्म में, एक सेंटर के आसपास, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स. दे कॉज लार्ज डिस्ट्रक्शन स्पेशली इन नियर द सी शोर्स. सी के किनारे पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस फैलाती हैं. Here are few precautions that we have to take during the time of cyclones. Listen to the radio and watch TV for weather forecast. वेदर फोरकास्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें टीवी और रेडियो को सुनते रहना चाहिए. मूव टू द सेफ प्लेस. मूव टूवर्ड्स द सेफ प्लेस. किसी सेफ प्लेस के ऊपर चले जाना चाहिए. क्लियर? स्टोर ड्राई फूड हमें स्टोर करके रखना चाहिए सो दैट वी कैन कंज्यूम एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी. स्टे अवे फ्रॉम सीज एंड ओशन. सीज एंड ओशन से हमें दूर रहना चाहिए. आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, फिशरमैन्स को अलार्म कर दिया जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साइक्लोन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन, डोंट गो इन द सी एंड ओशन फॉर फिशिंग. लास्ट, कीप द एमरजेंसी नंबर हैंडी. हमें एमरजेंसी नंबर्स अपने पास रखने चाहिए, नोट करके रखने चाहिए. क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट द साइक्लोन. Except these two, there are few more types of natural disasters that are like blizzard. Blizzard means it's a snowstorm that generally occur in the polar region or in the Arctic and Antarctic region near the poles. इसमें क्या होता है? Very strong winds are accompanied with the snowfall. Okay, and they are also very much destructive. They cause a lot of damage to the human and our property. Next are landslides. Landslides, this word is very common to us. Landslide means rocks का, stones का mountain slopes के ऊपर से गिरना. It is due to very heavy rainfall or very snowfall. स्नोफॉल जब होती है या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, उससे क्या होता है? लैंडस्लाइड हो जाती है. जिससे क्या होता है? जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होता है? काफ़ी डैमेज हो जाता है. जैसे लोगों के घर वगैरह टूट जाते हैं, या फिर क्या होता है? रिवर वगैरह में लैंडस्लाइड की वजह से फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज़ वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स वॉल्केनो का फटना. इसमें क्या होता है कि जब वॉल्केनो फटता है तो उसमें से क्या होता है? लावा निकलता है. मॉल्टन मटेरियल, बिल्कुल हॉट, बहुत ज़्यादा. और इससे क्या होता है? इट रूइंस एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे. उसके रास्ते में कुछ भी जो आता है उसको ये ख़त्म कर देता है. एकदम से गर्म होता है, हर चीज़ को मेल्ट करके नष्ट
कर देता है। नेक्स्ट आर टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज आर फनल लाइक शेप, ये एक फनल की शेप में होते हैं टॉर्नेडो, जिसमें हवा लैंड के ऊपर राउंड घूमती है और ये लैंड से लेके क्लाउड तक उठ जाती है, और जहाँ जहाँ ये चलता है उसमें जो भी सामान आता है, कुछ भी मटेरियल आता है, ये उसके साथ अपने साथ उड़ा के ले जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ वाइल्ड फायर और फॉरेस्ट फायर। वाइल्ड फायर और फॉरेस्ट फायर मीन्स जंगलों को आग लग जाना। इससे क्या होता है, हमारी जो बहुत सारा जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट में, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स क्या हैं, इसमें सारे आग में जल जाते हैं। इट इज़ आल्सो अ वेरी डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिज़ास्टर। अभी आपने सुना होगा ये 2020 के फेब में ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा लॉस हुआ प्रॉपर्टी का इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट आर टी सुनामीज। टी सुनामी मीन्स जो सी की वेव्स हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगती हैं कोई अंडरग्राउंड अर्थक्वेक की वजह से, अंडर द सी लेवल। सी से नीचे जब क्या है, आपको पता है जो सी के नीचे भी क्या है, लैंड है, वहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से जब वेव्स बहुत ऊंची उठती हैं उनको क्या बोला जाता है, टी सुनामी। और इसकी वजह से क्या होता है, सी शोर वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। लास्ट आर द एवालांचेस। एवालांचेस मीन्स माउंटेन्स के ऊपर से स्नो का मेल्ट होना एकदम से, बहुत ज़्यादा, या तो स्नो मेल्ट हो या फिर स्नो का कोई बहुत बड़ा पीस आइस का जब टूट के गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड एवालांचेस। और ये भी क्या होता है, इसमें भी हाई माउंटेन से जब स्नो या आइस टूट के गिरती है तो इससे लो लैंड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का और ह्यूमंस का और जो लाइफ का है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्लियर। सो दीज वर द नेचुरल डिज़ास्टर्स। I hope these must be clear to you. Now read the chapter carefully. Okay, bye.